الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو عالم کے داتا اللہ کے نبی پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً درود و سلام پڑھنا سعادت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، اپنی بگڑی بنانے کی بات ہے، اپنی دعائیں قبول کرنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں درود پاک پڑھتا رہوں تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنا کتنا اہم کام ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا جو نماز پڑھ کے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی پر درود بھیجا، فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو، لیکن ہمارے نبی پیارے نبی کا جو بھی فرمان ہوتا ہے، آپ کی جو بھی بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ راز چھپا ہوتا ہے۔ تو اس فرمان میں کیا راز پوشیدہ ہے، آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اس حدیث پاک کا پس منظر بیان کرتے ہوئے شارحین احادیث لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، نماز پڑھا، دعا مانگا اور چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو اس نمازی کی جانب توجہ فرمائی، نہ اس سے کلام فرمایا، یعنی بات چیت بھی نہیں کی، نماز پڑھا، دعا مانگی، چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، لیکن نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اس سے کلام فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اے شخص، تو نے نماز پڑھا، تو نے اللہ کی حمد بیان کی اور مجھ پر درود بھیجا، اب دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی، سوال کر، تجھے دیا جائے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی امتی اگر اپنی نبی کی توجہ لینا چاہتا ہے اور نبی سے یہ بشارت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نبی فرمائے کہ اے امتی دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی، تو سوال کر، مانگ، تجھے دیا جائے گا۔ اس بات کو دنیاوی لحاظ سے آپ یوں مانیں کہ ہم بائک چلانے والے ہیں، لائسنس نہیں ہے،
गाड़ी के कागजात भी सही नहीं है, रोड में निकलेंगे पुलिस पकड़ लेगी, चालान काट देगी। लेकिन हमारी दोस्ती है एक पुलिस वाले से, उसने कह दिया यार तुम बेखौफो खतर घूमा करो, कोई पुलिस वाला मिले तो मुझसे फोन पे बात करवा देना। अब बताइए ऐसा शख्स अब खौफ करेगा? नहीं करेगा ना। पहले डरता था निकलने में, लेकिन अब तो बगैर हेलमेट के भी जाएगा कि पुलिस वाला मिलेगा, अभी फोन लगा के बात करवा दूंगा, पुलिस वाले की क्या मजाल, वो तो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि पीछे मौजूद है ना, पीछे एक बड़े का हाथ मौजूद है उसके कंधे पर, इसलिए उसको डर नहीं। अब देखें ये हदीस, सरकार ने उस नमाजी से फरमाया मैं हूं ना, तूने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द बयान की और दुरूद पढ़ा मुझ पर, तो अब तू दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी, तू मांग, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा। दूसरा नमाजी भी आया था, सरकार ने ना उसकी जानिब तवज्जो फरमाई, ना उससे कलाम फरमाया, ना उसको बिशारत दी। और सरकार का, नबी का जो फरमान होता है, प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों अपने जहन में बिठा लीजिए, ये कियामत तक के लोगों के लिए होता है, एक आदमी के लिए नहीं होता। जिस तरह उस उम्मती के लिए था, उसी तरह हम जैसे उम्मतियों के लिए भी है। तो अगर आज हम चाहते हैं कि साहब मैं दुआ करता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं जो अल्लाह से मांगता हूं मुझे वो मिलता नहीं, प्यारे इस्लामी भाइयों नबी ने तो हमें पहले फार्मूला बता दिया है कि वो भी आया था नमाज पढ़ के, दुआ मांग के चला गया, सरकार ने बिशारत नहीं दी। आज हम भी आते हैं जुमा में नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के दुआ मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर अगले जुमा आते हैं, जिस चीज की दुआ किया था अभी तक हल नहीं हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों आप सिर्फ 7 जुमा करके देख लें कि आप जुमा में नमाज पढ़ने आए, नमाज के बाद अल्लाह की हम्द बयान करें, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 100 मरतबा पढ़ें। फिर मस्जिद में सलातो सलाम होता है, नबी की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज कीजिए और फिर दुआ कीजिए। फिर दुआ कबूल ना हो तो आप मुझे कहिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके नबी ने फरमा दिया ना, किससे? उससे जो नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद अल्लाह की हम्द करता है, उसके बाद नबी पर दुरूद भेजता है, तो सरकार ने फरमाया दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी और मांग तुझे दिया जाएगा। तो नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह आज नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की हम्दो सना भी बयान करेंगे, यानी कम से कम 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, अगर वक्त कम हो तो 10 मरतबा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम पढ़ के जाइएगा, उसके बाद अपने दिल ही में दुआ कीजिएगा, या अल्लाह फुला काम अटका है उसको बना दे, या अल्लाह फुला मैं काम करने जा रहा हूं उसमें कामयाबी अता फरमा दे, मेरे घर में फुला बीमार है उसको शिफा अता फरमा दे। अगले जुमा को आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका काम हुआ कि ना हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों हमारे और आपके नबी ने ऐसे ऐसे फार्मूले दिए हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं रही। अगर हम तवज्जो कर लें तो ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफें, ये आजमाइशें खत्म हो जाएं। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे बयान का मौजू जैसा कि आप देख रहे हैं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम हैं, हजरत फातिमा के शौहरे नामदार हैं, हमारे नबी के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं, और तमाम सैयदों के वालिद भी हैं। इनकी क्या शान है? तो हमने मुहर्रम में जो हमारा सिलसिला फैजान मुहर्रम चल रहा था उसमें हमने सुना था, लेकिन मजीद ये मुहर्रम के आखिरी दिन है, आज मुहर्रमुल हराम की 23 तारीख है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सीरत के 3 वाक़यात आपके सामने बयान किए जाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कैसा इल्म, कैसा मकाम और कैसी अक्ल अता फरमाई थी। पहला वाक़या देखिए,
17 ऊंट और 3 आदमी। 3 आदमी थे, उनके पास 17 ऊंट थे। उन ऊंटों में तीनों का हिस्सा था। उनमें से एक आदमी का हिस्सा आधा था, यानी 17 ऊंट थे तो आधा कितना बना, 8.5। दूसरे का 9वां हिस्सा था, 9वां हिस्सा था, यानी एक ऊंट में 9वां हिस्सा उसका था। तो अगर हम 9वां हिस्सा मानते हैं 17 में, तो ये बनेगा कमोबेश 2 ऊंट और उसका तीसरे का थोड़ा सा हिस्सा। तीसरे आदमी का था तिहाई हिस्सा, यानी एक ऊंट में 3 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा उसका हो। तो इसका हिस्सा बन रहा था 5 ऊंट और छठे ऊंट का कुछ हिस्सा। अब इन तीनों का जब 17 ऊंट में हिस्सा था तो ये बांटने लगे, तो बांटने के दौरान इनको एक ऊंट काटना पड़ता। लेकिन ये चाह रहे थे कि किसी ऊंट को काटना भी ना पड़े, बराबर बराबर तकसीम हो जाए और सबको जिंदा ऊंट मिल जाए। बहुत कोशिशें की, खुद भी कोशिश की, दूसरों से भी तकसीम करवाया, लेकिन हर कोई यही कहता था, साहब तुम्हारा हिस्सा ही ऐसा है कि एक ऊंट को तो काटना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊंट को काटना नहीं है, सबको जिंदा ऊंट चाहिए। चुनांचे चलते चलाते हजरते अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जा पहुंचे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में अपना किस्सा सुनाया कि हुजूर हमारे पास 17 ऊंट हैं, एक का हिस्सा आधा है, दूसरे का हिस्सा 9वां है, तीसरे का तिहाई है। इन 17 ऊंटों में सबको सही सालिम जिंदा ऊंट भी मिल जाए, उसका हिस्सा भी मिल जाए, ना ज्यादा मिले ना कम मिले, और ऊंट कोई काटा भी ना जाए। वो मसला जो किसी से हल नहीं हो रहा था और हर एक ने ये कहा था कि साहब हर हाल में ऊंट काटना ही पड़ेगा, जिंदा ऊंट रखते हुए तकसीम कारी हो ही नहीं सकती। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चुटकी में इस मसले को हल फरमा दिया। कैसे? आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि मेरा एक ऊंट ले आओ। वो खादिम गया, एक ऊंट लाया। आपने अपने एक ऊंट को इन 17 ऊंटों में मिला दिया, तो अब कितने ऊंट हो गए? 18। पहले शख्स का आधा हिस्सा था, तो 18 का आधा कितना हुआ? 9 जिंदा ऊंट पहले आदमी को दे दिए। दूसरा का था 9वां हिस्सा, तो 18 का 9वां हिस्सा बनेगा 2, 9 दूना 18। तो दूसरे आदमी को आपने 2 ऊंट दे दिए। एक को कितना दिया? आधा, तो 9 दे दिया। दूसरे को कितना दिया 9वां हिस्से में? 2 ऊंट, 9 2 11। तीसरे आदमी का था छठा हिस्सा, 6 3 18, यानी उसके हिस्से में 6 ऊंट आ रहे थे, 6 ऊंट उसको दे दिए। कितने हो गए? 11 6 17। 17 ऊंट तकसीम हो गए, एक इधर बचा। आपने कहा ये मेरा था, लाओ मुझे वापस कर दो। आपने तकसीम कारी भी कर दी, अपना ऊंट भी वापस ले लिया, कोई ऊंट काटना नहीं पड़ा। ऐसी अक्ल हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। कैसी अक्ल थी! इससे भी अजीब वाक्य मैं आपको, ये तीसरा वाला, हालांकि मैंने तीसरे नंबर पे लिखा लेकिन अब दूसरे नंबर पे सुना रहा हूं। अच्छा, हाँ, ये तीसरे नंबर वाला। एक शख्स था, मालदार था, लेकिन मौत का वक्त आ गया। बच्चे छोटे छोटे थे। सोचने लगा कि मैं इतना माल रखता हूं, माल देकर किसको जाऊं? अगर बच्चों के सिपुर्द करता हूं, बच्चे हैं, अभी नादान हैं, बचपना है, माल कोई चोरी न कर ले जाए या बर्बाद न कर दें। उसके दिमाग में बात आई कि यार फुला मालदार शख्स मेरा दोस्त है, मैं उसको अमानत के तौर पर दे दूं और कहूं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको दे देना। इस तरह मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो माल से अपना घर चला लेंगे, कारोबार कर लेंगे। उस मालदार शख्स ने अपने दोस्त को बुलाया और सारा माल उसके सामने रखते हुए कहा कि अब मुझे जिंदा रहने की उम्मीद दिखाई नहीं देती,
لہذا میرا یہ مال ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو. اور اس مال کو ایک بوری میں رکھا اور دیتے ہوئے کہا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا، جو تیرا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، مال لیا چلا گیا، ادھر اس کا انتقال ہو گیا. تو اسی دوران اس مالدار آدمی نے چالاکی کیا دکھائی کہ کہا میرے دوست یہ الفاظ آپ نے تو کہہ دیے لیکن تحریر کر کے دے دیں تو میرے لیے سند ہو جائے گی، وصیت آپ کی ہو جائے گی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، کاغذ لاؤ. کاغذ میں لکھوا لیا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا. انتقال ہوا، بچے بڑے ہوئے. اس مالدار اپنے والد کے دوست کے پاس گئے کہ ہمارا مال دو، ہمارے والد صاحب نے دیا تھا. اس نے کہا ایسے نہیں دوں گا، کچھ لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کے سامنے دوں گا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو جمع کیا گیا. جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ مالدار شخص مال لایا اور وہ وصیت نامہ لایا اور کہا دیکھو بھائی، جب ان کا باپ مر رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ وصیت کر کے مجھے دیا تھا اور کہا تھا جو تیرا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا. تو مال یہ ہے، مال کو الگ رکھا. وہ تھیلا اٹھا کے، بوری اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بچوں کو بوری دوں، لہذا یہ بوری بچے پکڑیں، مال میرا. بچے دیکھ کے دنگ رہ گئے، یہ کیا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ تو ہمارا حق مار رہا ہے. سب لوگوں کو مخاطب کر کے بچوں نے کہا دیکھا ہمارے باپ کا مال کھا رہا ہے اور ہمیں مال نہیں دے رہا اور ہمیں بوری دے رہا ہے، خالی تھیلا دے رہا ہے. لوگوں نے جب بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو کہا کہ بھائی ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، تیرے باپ نے وصیت ہی ایسی کی تھی کہ جو تیرا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا. اس کا دل بوری دینے کے لیے چاہ رہا ہے، بوری دے دیا. تمہارے باپ نے اگر نہ ایسی وصیت کی ہوتی نہ وہ ایسا کرتا. بچے بڑے پریشان، عالم دین کے پاس گئے، بتایا سارا واقعہ. جب وصیت عالم سنتے ہیں تو کہہ دیتے صاحب اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے والد نے وصیت ہی ایسے کی تھی. بچے پریشان. بالآخر کسی نے ان بچوں کی رہنمائی کی کہ آپ حضرت علی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا حل کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں گے. چنانچہ گرتے پڑتے چلتے پھرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ کہہ سنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور فرمایا کہ سب کو جمع کرو، اس مالدار کو بھی بلاؤ. چنانچہ بلایا گیا، لوگ جمع ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے. آپ نے کہا ہاں بھائی ان کے والد نے کیا وصیت کیا تھا؟ اس نے کہا حضور ان کے والد نے یہ وصیت کیا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل کرے وہ میرے بچوں کو دے دینا. تو میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں بوری ان بچوں کو خالی دے دوں، تو لہٰذا میں ان کو دے رہا ہوں، مگر یہ لے ہی نہیں رہے. آپ نے فرمایا پھر سے وصیت پڑھ. اس نے کہا جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. آپ نے کہا پھر تیبارہ پڑھ. اس نے کہا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترنت فرمایا کہ بتا تیرا دل کیا چاہتا ہے، مال لینا یا بوری لینا؟ اس نے کہا حضور میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں مال لوں. فرمایا بس وہی بچوں کو دے دے. وصیت کیا تھی؟ جو تیرا دل چاہے. تیرا دل چاہ رہا ہے مال لینے کا اور بوری بچوں کو دینے کا، تو جو تیرا دل چاہ رہا ہے مال لینا وہی بچوں کو دے دے، بوری اپنے پاس رکھ. تمام لوگوں کی آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یار سب سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی نے تو منٹوں میں نپٹا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، اسی لیے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ولایت کے سردار ہیں. کسی کو اگر کوئی ولایت ملتی ہے تو حضرت علی کا دروازہ ضرور اس کو کھٹکھٹانا پڑے گا. اب تیسرا واقعہ سنیے اور حضرت علی کی شان اور عظمت اپنے دل میں بٹھائیے. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ دو آدمی تھے، ایک کے پاس 3 روٹی، ایک کے پاس 5 روٹی. سفر پہ جا رہے تھے، ایک جگہ رکے کھانا کھانے کے لیے. اتنے میں دیکھا کہ ایک تیسرا شخص آیا.
उसने कहा मैं भी मुसाफिर हूँ, मेरे पास खाना नहीं है, बड़ी मेहरबानी होगी आप अपने साथ मुझे खाना खिला लें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। एक की 5 रोटी थी, एक की 3 रोटी थी, तीनों ने मिलकर खा लिया। जब खा लिया और वो मेहमान रुखसत होने लगा तो उसने 8 दिरहम दिए, आप रुपए ले सकते हैं कि 8 रुपए दिए, और कहा कि आपस में बांट लेना। 8 रुपए दे के चला गया तो वो शख्स जिसकी 5 रोटी थी उसने कहा कि साहब आधा आधा बांट लेते हैं, 4 रुपया तू ले ले। नहीं, उसने कहा कि मेरी 5 रोटी थी तो मैं 5 रुपए ले लेता हूं, तेरी 3 रोटी थी तो 3 रुपया ले ले। 3 रोटी वाले ने कहा नहीं नहीं साहब, आधा दो तो मानूंगा, वरना मैं 3 रुपए नहीं लूंगा, 4 तू ले 4 मैं लूं। उसने कहा नहीं साहब 3 ले ले, तेरी 3 रोटी थी, मेरी 5 रोटी थी, मैं 5 ले लूं तो 3 ले ले। नहीं राजी हुआ। कहा चलो फैसला करवाएंगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दोनों पहुंचे और कहा हुजूर फैसला करवाना है। किस बात का? पूरा वाकया सुनाया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 रोटी वाले से कहा तेरा साथी 3 रुपए देता है तो ले ले, इसमें तेरा फायदा है, वरना तेरे हिस्से में इससे भी कम आएगा। उसने कहा हुजूर नहीं नहीं, मैं तो इंसाफ चाहता हूं, आप फैसला करें, अगरचे मेरे हिस्से में कम आएगा तो मैं ले लूंगा। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने फैसला फरमाया कि एक के पास 3 रोटी थी, एक के पास 5, 8 रोटी के हर रोटी में 3 हिस्से करो। तो 8 रोटी के कितने हिस्से बनेंगे? 24, क्योंकि खाने वाले 3 थे। जब 24 रोटी बनी तो एक के हिस्से में कितने टुकड़े आए? 8। तो हजरत अली ने फरमाया 8 टुकड़े तूने खाए, 8 टुकड़े तेरे साथी ने खाए, 8 टुकड़े मेहमान ने खाए। ठीक है। अब तेरी रोटी थी 3 रोटी के हर रोटी के 3 टुकड़े करो तो 3 त्रिक 9। तेरी रोटी के 9 टुकड़े हुए, 9 में से 8 तो तूने अपने हिस्से की खा ली, तेरे हिस्से का सिर्फ 1 टुकड़ा मेहमान ने खाया। और जिसकी 5 रोटी थी तो उसके टुकड़े हुए 15, और सब ने 8-8 टुकड़े खाए तो 15 में से इसने 8 अपने खा लिए, 7 टुकड़े इसके मेहमान ने खाए। अब मेहमान ने दिए 8 रुपए तो 1 हिस्सा तेरा खाया था मेहमान, तो 1 रुपया तू पकड़, 7 हिस्से उसके खाया था तो 7 रुपये वो पकड़े। अब वो दम बखुद रह गया कि साहब 3 ही ले लेता तो बेहतर था, ये तो घाटा हो गया। तो ऐसी अक्ल अल्लाह ताला ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया था। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंदो बाला है। आपकी शान अगर बयान करना चाहे बंदा तो बयान करता रहे, सुनते रहें। ऐसे ऐसे आपके ज़माने के वाक़यात हैं। और रिवायतों में आया कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमाया था कि आप खुद फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना चाहूँ तो 70 ऊँटों को बोझल कर दूं। बोझल मतलब इतनी बड़ी तफसीर लिखूं कि 70 ऊँट उसको उठाने में लग जाएंगे। इतना इल्म अता फरमाया था, इतना अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था। तो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से अल्लाह ताला हमें माला माल फरमाए। 2 ऐलान समात फरमाए। पिछले जुमा भी ऐलान हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ान मुहर्रम एक किताब लिखने जा रहे हैं जो हिंदी में होगी। उसमें अहले बैत की शान बयान होगी और इस तरह के वाक़यात भी होंगे। और मेरी नियत है कि इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात लिखें, ताकि हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान अहले बैत अतहार की अज़मत को समझ पाएँ और उसमें अहले बैत की अज़मत को समझाया जाएगा। क्योंकि हमारे और आपके नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम बिसलासी खिसाल, कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। उन 3 चीज़ों में दूसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो उस किताब में वो भी होगी। तो ऐलान किया था कि ये किताब इंशाअल्लाह 100 रुपये तकरीबन कीमत पड़ेगी इसकी। तो 500 किताबें छपवानी है, जिसमें से 175 किताबों की नियत आ चुकी है। 175। तो अभी हमें चाहिए 325 किताबें।
325। तो आपको नियत भी करवाई थी कि कोई 10 पीस नियत कर ले, कोई 20 पीस, कोई 25, कोई 50, जितनी जिसकी हैसियत है। लेकिन पिछले जुमा से सिर्फ एक इस्लामी भाई 25 किताबों की नियत का इजहार किया, बाकी अभी नहीं आए। तो यकीनन सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ताहिर भाई 10, तो ये हो गए 185, अभी 315 बाकी हैं। तो आप नियत करें सलातो सलाम के बाद मुझे दें या इमाम साहब को दे दें, अभी नहीं है आप नाम लिखवा दें। और ऐलान किया था कि अगले जुमा को लेते आइएगा, तो बाज़ इस्लामी भाई अगले जुमा को यानी इस जुमा को आए तो लाए होंगे, जो नहीं लाए अगले जुमा को दे दें। ये किताब इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में हम छपवाने में डाल देंगे, क्योंकि अभी हिंदी की जा रही है। हिंदी करवाने का सिर्फ 8,000 रुपया लग रहा है। हिंदी उर्दू में लिखी है किताब, तो ट्रांसलेट करवाने में 8,000। तो आप नियत करें, साहिब सरवत हैं, अगर 25-25 की नियत कर लेंगे तो 4 लोगों में 100 हो गया, 4 12 13 लोग कर लेंगे, लो हो गया। तो बार बार ऐलान भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, महंगाई जिस तरह बढ़ रही है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले भी ऐलान किया गया था कि जिस तरह आपके घर के अखराजात बढ़ते हैं, उसी तरह जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनके भी अखराजात बढ़ते हैं। सिर्फ महंगाई आपके घर नहीं है, इमामों के घरों में भी है। लिहाजा इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, लेकिन बढ़ेगी कैसे? जब चंदा आएगा। तो आपसे अर्ज है कि आप चंदा भी दें। जुमा में ज़्यादा नहीं आता, आप पता कर लें और उसका निकालेंगे तो इमाम साहब की तनख्वाह भी नहीं निकल पाएगी। तो आप नियत करके जाएं कि जहां हम अपने घर के अखराजात चलाते हैं, हालांकि पूरे घर का खर्चा आप अकेले चलाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर का खर्चा 100 लोग 200 लोग मिलकर भी नहीं चला पाते। कितनी अफसोस की बात है। लिहाजा आप हर जुमा 100 रुपया ज़रूर डाला करें, या नियत कर लें कि साहब मैं महीने में 400 रुपया अल्लाह के घर के लिए दूंगा। ये सदका है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से आपकी बलाएं भी दूर करेगा, मुसीबतें भी दूर करेगा, बरकतें भी अता फरमाएगा। अगर 100 रुपया 100 इस्लामी भाई अगर हर हफ्ते दें तो कितने हो जाएंगे? 10,000। महीने में अगर 4 जुमा हुए तो कितने हो गए? 40,000। हमारे मस्जिद के पास बैंक में भी बैलेंस रहेगा कि आगे कुछ काम करवाना है तो आपसे मांगना नहीं पड़ेगा, ऐलान नहीं करना पड़ेगा, इमाम साहब खुद पहले से पहले कर लेंगे, क्योंकि तनख्वाह निकालने के बाद अच्छी खासी रकम बच जाएगी। और यही अक्लमंदी है। हमारे मुसलमानों में क्या है, वो फ्यूचर नहीं देखते, बस हाल देखते हैं, यानी प्रेजेंट देखते हैं। हालांकि कहते हैं यार इन फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। साहब फ्यूचर प्लानिंग अल्लाह के दीन के लिए भी तो करनी चाहिए ना। तो हम मस्जिद के लिए भी करें कि अगर किसी वक्त हमारा कारोबार बंद हो गया, हम चंदा ना दे पाए या कोई ना दे पाए, तो मस्जिद कैसे चलेगी? तो हमारे मसाजिद मदारिस में इतना बैलेंस होना चाहिए कि अगर 10 साल भी चंदा ना किया जाए तब भी हमारे मदारिस और मसाजिद बंद नहीं होने चाहिए, इमाम की तनख्वाह जारी रहे। क्योंकि इमाम भी प्यारे इस्लामी भाइयों खाता है, ऐसा नहीं है कि वो रोज़ा रखता है और कुछ नहीं खाता, बस वो पढ़ाता रहता है, चलता रहता है। तो आजकल तो मोबाइल भी बगैर चार्ज किए नहीं चलता। जो जिसमें जान नहीं है तो जिसमें जान है वो कैसे चल पाएगा? तो हम इन फ्यूचर प्लानिंग लेके चलें कि अगर 40,000 माहाना चंदा आया और 10,000 भी हम बचा के चलें तो 12 महीने में कितना हम बचा लेंगे? 1,20,000। अब 1,20,000 जब हमारे पास बैलेंस होगा तो खुदा ना खास्ता अगले साल चंदा ना हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो कोई हमें घबराने की बात नहीं है। इमाम साहब से कहेंगे आप टेंशन ना लो, आपको घर जाने की हाजत नहीं है, हमारे पास बैलेंस है कि हम आपको रख सकते हैं। या आगे काम करवाना हुआ, कोई मस्जिद का जो है इमारती काम है या कोई और दूसरा काम है, तो सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत चंदा जमाए करवा लो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें साथ दें। हर इस्लामी भाई, अब 200 प्लस नमाजी आते हैं और उन 200 में से 100 अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये दे सकते हैं। तो नियत करके जाएं, हर महीने नहीं तो आप हर हफ्ते नहीं तो 1 महीने में इकट्ठा दे दें। तो इंशाल्लाह इस तरह हमारी मस्जिद का मुआमला भी चलता रहेगा और आपके भी घर में खैर बरकत होती रहेगी। तो किताबों के लिए भी हिस्सा लें, मसाजिद के लिए भी दें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी बरकतें भी अता फरमाए। जो इस्लामी भाई सुन्नत अदा नहीं की वो सुन्नत